فارغ ہے. میں کل گزر رہا تھا رش سے، ایک بابا جی بیٹھے تھے اور میرا اوپر سے روزے کا وقت تھا اور میں گاڑی کے ایک رش میں پھنسا ہوا تھا. ایک بابا جی کو بیٹھا کھا رہے تھے، بوڑھے بابا بیچارہ، اسے دنیا جہان کا کوئی فکر نہیں، اسے پتہ نہیں رمضان ہے، روزہ ہے، کیا ہے، لوگوں کی نفسا نفسی ہے. میں نے سوچا اس زندگی کے ان مراحل سے تھکا مارا بابا گزر کے اب ایک انتظار میں ہے کب موت اور فرصت کے آخری لمحات میسر ہوں. میت فارغ ہے، مریض فارغ ہے اور قیدی فارغ ہے، باقی کوئی فارغ نہیں، بالکل فارغ ہے قیدی. کئی بار جیلوں میں، چند بار جیل میں جانے کی ترتیب بنی درس کے لیے، کچھ بات چیت کرنے کے لیے. ایک جیل کی بات بھی یاد آئی. ایک صاحب تھے، اس کا نام تو کچھ کیا تھا، اس کو خوشبو ہی کہتے تھے، پتہ نہیں کیوں کہتے تھے. اور میں اسے اکثر کہا کرتا تھا کہ اللہ کا بندہ تھوڑا سا کوئی اللہ اللہ کے لیے وقت نکال لیا کر، کوئی تسبیح، کوئی نماز، کوئی ذکر، کچھ اعمال. مجھے کہتا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ فارغ ہیں، میں بہت مصروف ہوں. میں نے کہا زندگی میں مصروفیت ختم ہی ہو جائے گی، ہم ختم نہیں ہوں گے، اور مصروفیت سدا باقی رہے گی، ہم ختم نہیں ہوں گے. کہتے رہے. میں ایک دفعہ گیا، جو میں گیا نا تو سامنے انہوں نے میل دروازہ کھولا. وہ جوڈیشل جیل تھی، بڑی جیل نہیں تھی. تو انہوں نے بڑا دروازہ کھولا. میں جب اندر گیا تو ادھر ایسی لائنوں میں بارکیں بنی ہوئی تھی. میری نظر سامنے پڑی، یوں پکڑ کے کھڑا ہوا تھا اور مجھے نظر نہ آیا، اس نے آواز دی. میں جب گیا نا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا وہ نہ کہنا، اب میں فارغ ہو گیا ہوں، اب بول کیا چاہتا ہے میں وہ کروں گا. اور واقعتاً اس وقت میں فارغ ہو سکتا تھا. اب میں جو جیل میں آیا ہوں، مجھے کہنے لگے یقین جان کوئی جرم نہیں تھا، کوئی اتنی بڑی میں نے بدماشی نہیں کی تھی، کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں کیا تھا، لیکن کوئی تقدیر کا نظام ہے مجھے لپیٹ کے جیل میں لے آئی ہے. شاید میں تیرا انتظار میں تھا. اور مجھے کہنے لگا میرا دل کہتا ہے کہ تو نے آنا تھا اور آ کے مجھے کہنا تھا اور میری بیل ہو جانی ہے. اب میری بیل ہو جائے گی، اٹکی ہوئی ہے. میں ہنس پڑا. میں نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے میں اسی لمحے کا انتظار تھا کہ طارق ہے اور آ کے کہے مجھے وقت دے دے اور میں کہوں ہاں میرے پاس وقت ہے. اس سے پہلے میں کہتا تھا میں مصروف ہوں. اور قدرت کا نظام تیسرے دن میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، کل ہی چھوٹ کے آیا ہوں اور آنن فانن میری بیل ہو گئی ہے. مصروف کر لیں اپنے آپ کو. آج جیسی راتوں میں، آخری راتوں میں، ساری عمر فرصت ہی فرصت ہے. بڑھاپے کے نام پہ فرصت، اللہ نہ کرے بیماری کے نام پہ فرصت، اللہ حفاظت فرمائے جیل کے نام پہ فرصت، اور ورنہ قبر کے نام پہ فرصت تو سب کو ملے گی. فرصت ہی فرصت ہے، اور آخری فرصت اور ہمیشہ کی فرصت ہی فرصت ہے. کبھی نہ گھبرایا کرے. یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ہر لمحہ ہر لحظہ اعمال میں لگایا ہوئے. دیکھیں ایک بات بتاؤں، انسان کا بدن اعمال بنانے کی مشین ہے، اعمال بنانے کی مشین ہے. جنریٹر چل رہا ہے، آپ کچھ بھی نہ چلائیں، پنکھا کچھ نہ چلائیں، جنریٹر تو ڈیزل کھا رہا ہے نہیں کھا رہا، فیول کھا رہا ہے، جنریٹر چل رہا ہے. انسان اعمال بنانے کی مشین ہے. اس سے جتنے نوٹ نکالنے ہیں نکال لو، بڑا نوٹ نکالنا ہے، چھوٹا نوٹ نکالنا ہے، جتنا نکالنا ہے نکال لو. یہ اعمال چھاپنے کی مشین، اعمال بنانے کی مشین ہے. جتنا کچھ کرنا ہے کر لو. پر ایک بات بتا دوں، یہ جو نفل آپ زیارت کے پڑھ رہے ہیں، اتنا خوش قسمت وہ چہرہ اور آنکھیں ہوں گی جو آقا کے چہرے انور کو دیکھیں گے. وہ کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا
जिसने उस हस्ती को देखा होगा जिसको जिब्रील देखने आते थे। और जिस दिन जिब्रील लेने आए थे, जिब्रील लेने आए कि अल्लाह आपके दीदार का मुंतजर है, खुद जिब्रील रो रहा था कि जिब्रील तू क्यों रो रहा है? आज के बाद कोई नबी नहीं आएगा और खत्म नबूवत की मोहर, और मैं फिर किसी के पास वही लेकर नहीं आऊंगा, बस अब किसी के पास वही लेकर नहीं आऊंगा। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। और जिब्रील ने आके कहा कि इज़राइल आपकी ज़ियारत का मुंतजर है, अल्लाह आपको अपनी मुलाकात के लिए पसंद करना चाहते हैं, इजाजत हो तो आ जाए, इजाजत नहीं है, मेरा अल्लाह कहता है तो मेरे हबीब जैसे कहे मैं वैसे चाहूंगा। फरमाने लगे अगर अल्लाह दीदार ज़ियारत का मुंतजर है, मुलाकात का मुंतजर है, दीदारत नहीं मुलाकात का मुंतजर है, तो ये बताए मेरी उम्मत का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। अम्मा आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, वालदा मोहतरमा, जब मैंने देखा बच्चा पैदा हुआ उसके होंठ हिल रहे थे, मैंने कान साथ लगाए तो होंठ हिल रहे थे और आवाज आ रही थी या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा? और जब इस दुनिया से रवानगी का वक्त है मेरे आका का, फरमाते हैं मेरी उम्मत का क्या बनेगा? पहले ये पूछ के आओ। जिब्रील गए अर्शों पे अल्लाह से पूछ के आए तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? वला सौफा युती का रब्बो का फतरसा, ऐ मेरे हबीब हम आपको राजी कर देंगे, आपकी उम्मत की शफात में आपको राजी कर देंगे। और आज भी जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह पाक की रहमतें इतनी मिले कि मैं राजी हो जाऊं, वो इस आयत को पढ़ना शुरू कर दे, राजी हो जाएगा। अल्लाह की नेमतें इतनी मिले, रिस्क की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, दौलत की शक्ल में, माल की शक्ल में, मार्फत की शक्ल में, इल्म की शक्ल में, हकीकत की शक्ल में, तरीकत की शक्ल में, वदीयत की शक्ल में, इल्म लदुन्नी, इल्म वहबी, इल्म गैबी, कायनात के असरार और रमूज, कायनात के कोने कोने की कैफियत, असर की कैफियत, फजर की कैफियत, तहज्जुद की कैफियत, जवाल की कैफियत, और सीने के उलूम, सीने के राज, कायनात की जो चीज दीन दौलत दुनिया पाना चाहता है, वला सौफा युती का रब्बो का फतरजा, तो इसको पढ़ दीवाना होके रब तुझे वो अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। आज भी इस आयत की वो तासीर मौजूद है, इस आयत की आज भी तासीर है, और आप सबको इसकी इजाजत है। जो शख्स इस आयत को पढ़े इसी सच्चे जज्बे के साथ, सच्चे कमाल के साथ, हाय हाय, ये सूरत वज़्ज़ुहा की आयत है, हाय हाय सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया ठीक है, अगर अल्लाह पाक मेरी मुलाकात का मुश्ताक है तो मैं भी अल्लाह की मुलाकात का मुश्ताक हूं। और फिर अजीब बात फरमाई, ओहो, ये कायनात के किसी हमदर्द से ये बात सुनने को नहीं मिलेगी, कायनात के किसी ऐसे रजाकार से ये बात, दुनिया का कोई शख्स ऐसा है जिस कहता है कि मेरे अंदर आखिरी हमदर्दी है, उसके मुंह से भी ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। इज़राइल आज जितनी भी तकलीफें हैं मुझे दे दे, पर मेरी उम्मत को रूह निकालते हुए कोई तकलीफ ना देना। अल्लाह अकबर। नबी को तकलीफ कैसे हो सकती है? आय हाय, जिन्हें आके गरीबां दी बां फड़ लई, वो दानाए सबुल खत्म रसुल मौलाए कुल के जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा, इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा, मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हजूर पर, मेरी हजार जाऊं कुर्बान मुस्तफ़ा। कि इज़राइल आज जितनी भी तकलीफें हैं मुझे दे दे, मेरी उम्मत को ना देना। क्या मुबारक वो लम्हे होंगे, वो हस्ती होगी और वो आंखें होंगी जो मेरे आका का दीदार करेंगी, मुश्ताक बेचैन
बेकरार को दीदार हो जाता है। पक्की बात कह रहा हूं, जो अंदर से जिसको बेकली बेकरारी है उसको दीदार होते हैं। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीदार होता है, होता है। आहा। और आज एक ऐसा अमल होगा सूरत इखलास का, उससे पहले इसमें ज़ात का जिक्र होगा। हर हमारी ताक रात में इसमें ज़ात का जिक्र होगा और सूरत इखलास का एक अमल होगा। फरमाया कि दुनिया की आखिरी मुश्किल हो, इकट्ठे होके अगर 40,000 दफा, याद है मैंने पिछले साल भी कराई थी, इकट्ठे हो गए अगर 40,000 दफा सूरत इखलास पढ़ ली जाए और दिल में जो मुराद रख के पढ़ेंगे उसी वक्त पूरी हो जाएगी। आज हम बैठेंगे, मैं भी साथ बैठूंगा और बैठ के पढ़ेंगे, मुराद पूरी हो जाएगी। जो मुराद रख के बैठेंगे, जो दिल की मुराद रख के बैठेंगे। अभी बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे, इसमें ज़ात के जिक्र के बाद दुआ होगी, फिर गुठलियां बिछा के सूरत इखलास पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। और बताऊं, मेरी तरफ देखें जरा, जिब्रील आए बैठे थे। जिब्रील बोले आका की बारगाह में, आका के गुलाम आए, उनकी दाढ़ी से पानी टपक रहा था वुजू का, बाएं हाथ में जूता था। वहां गए, या रसूल सल्लम ये कौन है? और फिर तारुफ कराया आपने फरमाया, फरमाया इससे ज्यादा अर्श वाले इस बंदे को जानते हैं। हुजूर ने फरमाया किस वजह से? अर्श का हर फरिश्ता इस बंदे को जानता है, फर्श का हर फरिश्ता इस बंदे को जानता है। वह किस अमल की वजह से? फरमाया दो अमल की वजह से। हर वुजू के बाद तहियतुल वुजू पढ़ता है और सूरत इखलास से मोहब्बत करता है, और जो सूरत इखलास से मोहब्बत करता है उसका अर्श का फरिश्ता उसको जानता है। अर्श का कोना कोना उसका तारुफ और मुतारिफ है। ये वो शख्स है अर्श वाले, और अगली बात उससे अजीब है, फर्श वालों से ज्यादा इसको अर्श वाले जानते हैं। उसकी वजह सूरत इखलास से मोहब्बत करता है, सूरत इखलास से मोहब्बत करता है। क्या खुशकिस्मत है, तस्बीह खाने में कैसे कैसे मोती मिल रहे हैं। इसमें ज़ात का जिक्र करेंगे जहां अल्लाह का जिक्र हो। और शायद आज दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन सारे हालात यही बता रहे कि शायद आज अगर शबे कदर भी हुई और अल्लाह का नाम हम अल्लाह को सुनवा रहे हैं। हाय हाय, रहीम पूजा वाला था, रहीम पूजा वाला, राम रहीम बचता, रहीम पूजा वाला था। वो गलियों में बाजारों में फिरता था, एक लफ्ज कहता था, जीवे जीवे सादिक जीवे, जीवे जीवे सादिक जीवे। नवाब ऑफ बहावलपुर, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी उस वक्त नवाब था, गलियों में बाजारों में। और फिर सादिक जब आता था, सैलून उनका लगता था स्टेशन पे, हर तरफ फौज होती थी, सलामी, और उस वक्त वो कहता था जीवे जीवे सादिक जीवे। सादिक को सादिक की मोहब्बतें, सादिक को सादिक की तारीफें सुनाता था और इनाम पाता था। आज मेरे अल्लाह को अल्लाह का नाम सुनाए, वाह वाह। और मेरे अल्लाह को पसंदीदा उसकी सूरत सुनाएं, जिस सूरत में मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे सारी की सारी मोहब्बतें इस सूरत में सिमट गई हैं, इखलास कुल वल्लाह। क्या और क्या पागल दीवाना होगा जो यहां से फारिग होके दो नफिल पढ़ लेगा, पहली रकत में सूरत आयतल कुर्सी, दूसरी में इखलास, और कहेगा मौला अपने आका का दीदार करा दे, मौला मेरे कर्जे खत्म कर दे, और मौला मेरे रिज़्क़ में बरकतों के दरवाजे खोल दे। और कोई खुशकिस्मत में होगा
जो वो 4 नफिल पढ़ लेगा हाफजे वाले, मेरा भी उन हाफजे वाले नफिल में हिस्सा रख लेना, ज़ियारत वाले नफिल में मेरा और मेरी नस्लों का भी हिस्सा रख लेना, कोई कमीशन मेरा भी रख लेना। कितने खुशकिस्मत हैं कि आप इन नेमतों को लेके, इन सादतों को लेके बैठे हुए हैं। मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन जो तस्बीह खाने में मिल रहा शायद कहीं ना मिले, शायद कहीं ना मिले, शायद कहीं ना मिले। मैं फिर भी दावा नहीं करता, मैं किसी चीज का दावेदार नहीं होता। जो नेमतें, जो सादतें, जो खैरें, जो बरकतें और जो रूहानी रिज़्क़ के दस्तरखान खाने में सजते और लगते हैं, ये किसी किस्मत वाले को मुयस्सर होते हैं। मैंने तो हर साल ये अमल कराया और किया। कौन सा? 40,000 दफा क्या? सूरत इखलास दीवानों ने बैठ के पढ़ा और पढ़ने के बाद दुआ मांगी है, रब ने कुन फयकून कर दिया है। सुभान। कदरदानी करने वाले को इज्जतें, खैरें और बरकतें मिल के रहती हैं, और कदरदानी करने वाली को नेमतें और सादतें वो लेके रहता है। अल्लाह पाक मुझे आपको सच्ची कदरदानी अता फरमाए और सच्ची सादतें अता फरमाए। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बैठ के अल्लाह का जिक्र करेंगे। पहले जिक्र होना था, फिर दुआ होनी थी, मुझसे भूल हो गई। बैठ कर आज बैत भी होगी, चलो पहले बैत कर लेते हैं। मैं जो बैत के कलिमात पढ़ाता जाऊं, जो हजरात पहले से बैत हैं वो तजदीद बैत की नियत कर लें, जो बैत होना चाहते हैं वो बैत कर लेंगे बैठे बैठे। उसके बाद जिक्र करते हैं और फिर अल्लाह से दुआ और फिर सूरत इखलास का वो बबरकत वाला अमल करते हैं। तो बैत के कलिमात पढ़ते जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह मैंने बैत ली हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे, और तौबा की शिरक बिदत से, सगीरा कबीरा गुनाहों से, और अल्लाह मेरी बैत को कबूल फरमा। चलो मुबारक हो, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बैत हो गई। अब अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से बैठ के करें। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह